Good morning, friends. Once again, we are starting with a chapter number 14, where I had got a lots of complaints from the students that they are facing a little bit of problem pertaining to the formula, how to use that. So once again, I am revising all the formula which you are facing a problem here. I would like to highlight a formula relevant to the mean. Here, first we'll see about that directly. I am explaining from a page number is a 264. Here, if I want to find it out a FIDI, then this called as a frequency part, this called as a class interval. Mid of this is equal to xi, means 10 plus 25, that is divided by 2 कर देंगे, then you will get a 17.5. So sum of these two divided by 2, 40 प्लस 25 लेंगे, 4 5 है 65.65 डिवाइडेड बाई 2, देन आई एम गोइंग टू गेट द आंसर इज 32.5. FIDI जो है दैट इज ए, ये जो पूरी सीक्वेंस जो एक्स आई हमने निकाला उसमें से वी हैव टू टेक वन एज ना मिड टर्म. सो हियर वी हैड कंसिडर्ड 47.5 एज ए मिड टर्म. सो DI इजिकल एक्स आई माइनस ए करेंगे. सो ये दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है दैट इज this value is a DI. So DI multiply by frequency, that is equal to this, and you have to do the summation of this, that is a sigma of FIDI is equal to 535. So here the mean of the deviation D bar is equal to क्या होगा, sigma of FIDI upon sigma of FI, means this value, sum of this. So the final formula which you are going to learn is X, means a mean bar, that is equal to mean is equal to assume mean plus summation of a sigma of FIDI upon sigma of FI. This is your mean formula, which is a widely used to get the answer for a mean. Now same another formula which has been used in this particular part is relevant to the step deviation. Here for step deviation we are using a X bar, means a mean, is equal to assume mean plus sigma of FIUI, sigma of FIUI upon sigma of FI multiplied by H. H means the length of the class. Here how to get this particular sigma of FIUI. So let us see one table. Here I would like to highlight pertaining to this. We had taken a 10 and 25 और उसका डिवाइड बाय 2 करते हमने मिला था 17.5. एज्यूम मीन किया था दैट इज ए 47.5, दैट इज दिस 47.5 जो आगे हमने लिया था. सेम वी आर टेकिंग ओवर हियर, सेम सम इज हियर, एंड फ्रॉम दैट वी आर गोइंग टू गेट द आंसर, दैट इज 47.5, दैट इज इक्वल टू -30 -15 0 15 30 एंड 45. जब ये जो DI है, दिस DI, व्हाट इज DI? DI इज इक्वल टू XI माइनस ए एंड H मीन्स क्लास लेंथ. तो 25 माइनस 10 हाउ मच हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 15. 15 से डिवाइड कर देंगे. सो H ओ हियर इज इक्वल टू हाउ मच फॉर दिस पर्टिकुलर सम. H कितना हो जाएगा मेरा 15. सो दिस होल नंबर जो यहाँ पे जितने भी नंबर दिए DI के डिवाइड कर दीजिए 15 से. सो यू विल गेट दिस पर्टिकुलर रेंज. This number is a very small, so I am able to do the multiplication very easily. So the value which I am going to get is FIUI is equal to this. This is a very small value. So sigma of FIUI is equal to 29 I am getting for this particular sum. So formula of U mean is equal to sigma of FIUI upon sigma of FI. तो relation क्या है इसकी between U and X, means mean, that is called as a step deviation method. So in step deviation method UI is equal to XI minus A upon H हो जाएगा. So based on this we are getting this formula, that is a mean is equal to A stand for assume mean plus sigma of FIUI upon sigma of FI multiply with H, that H is a length of a class, sigma of FIUI upon sigma of Fi. These two formula is widely used for finding out the mean of any sum. Now this when we are using this particular part, it is also known as a
step deviation method. Now next, that is relevant to the mode. मोड के रिलेवेंट जब भी फॉर्मूलाज जब हम यूज़ करते हैं, दैट हैज़ बीन गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, दैट इज़ ऑन ए पेज नंबर इज 274. Here formula which has been given for a mode is equal to L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 multiplied by H. Now find it out कैसे करेंगे? So here lower limit of the model class कितना है? L. L stand for 40. The class size that is equal to H. Frequency F1 is a model class जो होगा that is called है ना F1. फ्रीक्वेंसी F0 क्या होगा? क्लास ऑफ दी प्रीसीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास. ये हम ये वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन जो आगे की वैल्यू होगी दैट इज नॉन एज ना F0. उसके नीचे जो आएगा F0, F1 एंड F2. सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग के बाद नीचे वाला जो नंबर होगा F1 के नीचे दैट इज कॉल्ड है ना सक्सीडिंग मॉडल क्लास. एंड बेस्ड ऑन दैट वी आर प्लेसिंग द वैल्यू. मोड इज इक्वल टू L, दैट इज योर लोअर लिमिट, प्लस model class minus class preceding to the model class, 2 of a model class minus preceding of the model class minus succeeding of the model class, multiply by height कर देंगे, you will get the value of mode. So you have to remember this in a form of a statement. So please write it down this formula 2 times so you are able to understand that particular things. In next session also we are going to see about the one sum I am going to take of a pertaining to the mode in this section also. Now mean, median, and now next is a median. Now how to get the median of that? तो उसके लिए थोड़ा स्किल बेस यूज़ करना है. इट इज़ अ वेरी इजी. यहाँ पे क्या है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द क्लास इज n/2. तो वी now locate the class whose community frequency is greater than or nearest to n/2 is called median class. Distribution above n. Suppose ये नंबर 53 है तो n/2 कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ दिस इज इक्वल टू 26.5. दिस नंबर इज हाउ मच? ऑड नंबर. सो नाउ 60 एंड 70 क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर 29 से ज़्यादा है देन n/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 26.5. तो 60 to 70 के अंदर अगर मुझे लेना है तो मुझे ये पूरा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि कैसे मैं इसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ. एंड बेस्ड ऑन दिस यू आर गोइंग टू गेट ए मीडियन. द मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF स्टैंड फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अपॉन F मल्टीप्लाई बाय हाइट. L क्या है? दैट आई already told you in a mode, that is a lower limit of the median class. N, that is a number of the observation total. CF, that is a cumulative frequency of the class preceding to the median class. F stand for frequency of median class. H क्या होगा? class size, that is assuming class size to be a equal. हमें यही कंसिडर करके चलना है कि सबकी लेंथ सेम है. So I am requesting you to write it down this formula 2 times, then you are able to understand that in a proper way. Now ये formula का repetition अगर आप 2 या 3 बार करेंगे then you are able to get that. Now in exams when they are asking about to find it out all the 3, or sometimes they may ask to by giving some VSQ having a weightage of around a 2 marks, then based on that one formula has been come to the existence when they had compared with a study. Then that formula has been given over here, that is on a page number is 286 in a textbook. That is a 3 times of the median is equal to mode plus 2 times of the mean. यानी मोड और 2 बार मीन कर देंगे then the answer will be a 3 times of the median. Here you have to keep one thing in mind कि ये फॉर्मूला पे आपको VSQ पूछा जाएगा जिसका 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है. सपोज वन वैल्यू ऑफ द मोड हैज़ बीन गिवन एंड मीडियन हैज बीन गिवन, सो यू हैव टू गो फॉर LHS टू RHS एंड यू हैव टू डू द सिंप्लीफिकेशन. पुट द वैल्यू ऑफ मीडियन मल्टीप्लाइड विथ 3, सब्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ द मोड. जो आंसर आएगा उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, यू आर गोइंग टू गेट द आंसर.
So this formula is a very important along with that. So in this section we had learned formula of the mean. दो फॉर्मूला इसके अंदर हो गए. वन इज कॉल्ड एज एन एज्यूम्ड मीन. एज्यूम्ड मीन बाय फाइंडिंग ए डी आई. अगर यू आई करते हैं दैट इज कॉल्ड एज एन स्टेप डेविएशन मेथड. स्टेप डेविएशन. देन वी हैड सीन द फॉर्मूला रिलेवेंट टू द मोड which is a very easy among all to find it out with a max number of the frequency and a median one another term. ये आपको कंप्लीट करना है. Is that clear? Now we are going to see about the next part, that is a sum number 14.3 का first we had seen yesterday. दैट इज़ ये हमने 135 ले के इसकी अलग अलग मीन की वैल्यू वी हैड फाइंड इट आउट. देन ये मॉडल क्लास लेके मैंने जब आपको बताया था, देन दिस सम्स आई एम जस्ट हाईलाइटिंग यू कि मोड ले लिया 135.76. नाउ यहाँ से मुझे अगर मीडियन ढूंढना है तो आई कैन अप्लाई द सेम फॉर्मूला विच आई जस्ट टोल्ड यू. दैट इज़ दिस फॉर्मूला. 3 ऑफ द मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 ऑफ मीन. Even though you will get the answer of the median, ये जो median का आंसर है you can get with this formula also. So you can apply any method over here. Here add done in all that in a sequence base. So hope that you are able to understand this particular part. Now we'll switch on to a 14.3 का sum number 2. Formula I had written over here. 3 of the median is equal to mode plus 2 multiplied by mean. Sum number 2 के अंदर दे दिया है, that is a class, that is a 0 to 10 having a 5 cumulative frequency हो जाएगी 5. Here in this particular sum we have to find it out the missing frequency of 2. 10 to 20 is having a x, 20 to 30 is having 20, 30 to 40 is having a 15, 40 to 50 is having a y, 50 to 60 having a 5. If I will make the summation of this, ये मुझे दे चुके हैं. Please remember that this has been given in your question only. Now cumulative frequency जब मैं बनाऊंगा that is equal to 5. Then second is a 5 plus x, 5 plus 20 that is equal to 25 plus x, 25 plus 15 that is equal to 40. x आगे का सेम आएगा. Now 40 plus x, ये y एडिशन हुआ. Then 40 plus 5 that is equal to 45 plus x plus y. So from that I am going to get the equation 45 plus x plus y is equal to 60. 60 minus 45 कर देंगे, then I am going to get x plus y is equal to 15. This is my equation number 1. Now median of the data is given, that is a 28.5. लाई अब 28.5 कहाँ पे लाई करेगा, दैट इज़ यहाँ पे 20 प्लस एक्स, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है 40. इट इज़ अ वेरी हाई, सो इट इज़ गोइंग टू लाई ओवर हियर इन दिस पर्टिकुलर. तो यहाँ से मैं ढूंढूंगा इन अ लाई इन इंटरवल ऑफ 20 to 30. तो मीडियन क्लास क्या होगा 20 to 30. लोअर लिमिट मेरी कितनी आ जाएगी एल, दैट इज इक्वल टू 20. ये वाला दैट इज इक्वल टू एल. दिस पार्ट इज एल. क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है प्रीसीडिंग टू द मीडियन क्लास, दैट इज अ 5 प्लस एक्स, दैट इज माई सी एफ. दिस वैल्यू इज नॉन एज ना सी एफ. दिस कॉल्ड है ना सी एफ. फ्रीक्वेंसी कितनी है तो 30 40, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी क्लास फ्रीक्वेंसी इज दैट इज कॉल्ड है ना प्रीसीडिंग, और ये हो गई फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू एफ. that I had written f is equal to 20. h क्या है, that is a difference between these two. if you take randomly h is equal to value क्या आ जाएगा 10. so my h is equal to 10. class frequency of the median class is a 5 plus x cf. now I am placing this in a formula. median is equal to l plus n by 2 minus cf upon f multiplied by h.
मीडियन इज इक्वल टू 28.5, लोअर लिमिट था मेरा 20 प्लस 20/2 माइनस 5 प्लस एक्स अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाई 10, सो 10 और इसको कट करेंगे, यहाँ पे 2 रहेगा मेरा. इफ आई डू द सिंप्लीफिकेशन 20/2 इज इक्वल टू हाउ मच 10 माइनस 5, 20/2 करेंगे कितना आएगा 20/2, यहाँ से 0 और 0 कट कर दो, दैट इज 20 माइनस 5 प्लस एक्स, तो इन वापस से एलसीएम में जाएगा. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम कन्वेइंग यू. सो आई एम गोइंग टू गेट, ये 20 इस तरफ गया तो ये 8.5, देन डू द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस, दैट इज इक्वल टू 10 माइनस 5 प्लस एक्स, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 20 माइनस 5, कितना हो जाएगा 15 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स करूँगा और उसका वापस से ये जो नीचे का डिनोमिनेटर मतलब 10 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा. इफ आई डू द सिंप्लीफिकेशन आई एम गोइंग टू गेट द वैल्यू इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स अपॉन 2 होगा. सो दिस 2 यहाँ से LHS से RHS लेके जाता हूँ, दिस 2 विल बी मूव ऑन दिस साइड, तो 5 2 10, 8 2 16 एंड 17, 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, एक्स को इस तरफ लेके जाएंगे, 17 को इस तरफ लेके आता हूँ, आई एम गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8. नाउ एक्स जब 8 है तो प्लेसिंग इन द इक्वेशन ओवर हियर, इक्वेशन नंबर 1, सो आई एम गोइंग टू गेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15, तो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, तो वाई इज इक्वल टू हाउ मच 7, दिस इज माई वैल्यू. सो वन मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 8, अनदर मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 7. सी ये सम जो है कैलकुलेटिव है एंड थोड़ा आपको ध्यान रखना है. ये अभी व्हेन विल मीट पर्सनली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू वंस अगेन, बट फॉर दिस यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस, यू हैव टू रिपीट दिस सम्स वंस और ट्वाइस, सो योर concept will become very clear. So I am expecting that whenever you are looking to my that YouTube video, I am requesting you to write it down along with this. थोड़ा लिख के प्रैक्टिस करेंगे आपको जल्दी से क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट दैट इज सम नंबर 3. एज ग्रुप हैज़ बीन गिवन, फ्रीक्वेंसी हैज़ बीन गिवन, यस CF हैज़ बीन गिवन. नाउ 18 to 20 दैट इज इक्वल टू 2, तो क्लास फ्रीक्वेंसी 20 to 25 इज इक्वल टू जो टेबल में दे दिया है. तो आई एम गोइंग टू शो यू फ्रॉम टेक्स्ट बुक कि वैल्यू एग्जैक्टली क्या दी है मुझे. This is a question. Below 20, 2, below 25, 6, below 30, 24. Below 30 मतलब क्या हो जाएगा 18 ग्रुप से लेके सारे आ जाएंगे, ऑल इज गोइंग टू बी इंक्लूडेड. बिलो 25 तो सारे के सारे इंक्लूड हो गए. सो हियर आई हैव रिटन समथिंग लाइक दैट 18 to 20 is 2, 20 to 25 वैल्यू हैज़ बीन गिवन इज इक्वल टू 6. सो व्हाट आई एम डूइंग 6 में से जो 2 वाले हैं ये ग्रुप वाले उसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 4, बिकॉज CF इज इक्वल टू 6. नाउ 25 से 30 के लिए वैल्यू कितना दिया है दैट इज इक्वल टू 24. यू कैन सी इन सम 24 over here, it has been given on a page number 288. So that is equal to 24. Next, below 35 is 45, below 40 78, below 45 ये सारे include हो जाते हैं. In short, you have to remember that these all are included in this 78 plus 20 45 plus 24 plus 6 plus 2. It has been included in this group also 89 में. Below 50 is a 92. तो सम ऑफ ऑल दिस टू इसके सब सारे इंक्लूड हो गए तो इसका सब्ट्रैक्ट करने पे यू विल गेट द वैल्यू एंड इट हैज़ बीन गिवन ऑन अ बिलो प्लीज रिमेंबर दैट. सो एज ग्रुप इज 18 to 20
ओनली 2, फ्रीक्वेंसी इज़ 2, 20 to 25, नंबर दिया है 6 मुझे, 6 में से 2 निकाल दूंगा तो इसके बचेंगे खाली 4, 6 इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मुझे दिया है, इट इज़ 24, तो 24 आगे की जो फ्रीक्वेंसी है उसको निकाल दूंगा 6, देन इट इक्वल टू 18, तो इसका आंसर आएगा 18, 24 के लिए 45 माइनस 24 इज इक्वल टू हाउ मच 21, 35 to 40, 35 to 40, तो ये जो है दैट इज़ 78 माइनस 45 करूँगा, आंसर विल बी 33, 89 दिया है मुझे, 89 माइनस 78 दैट इज इक्वल टू 11, देन 92 दिया है मुझे, 92 आगे के अंदर से सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज इक्वल टू 3, 98 माइनस 92 दैट इज इक्वल टू 6, 100 माइनस 98 दैट इज इक्वल टू 2, ये मुझे जो मिल रहा है दैट इज़ माई फ्रीक्वेंसी, 2, 4, 18, 21, 33, 11, 3, 6 एंड 2, ना टोटल n कितने हैं दैट इज़ द नंबर इज़ 100, सो n इज इक्वल टू 100, सो n बाय 2 करूँगा तो 100 बाय 2 हो जाएंगे दैट इज इक्वल टू 50, अब 50 कहाँ पे आएगा, तो अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो इसके अंदर मेरे 50 की रेंज होगी, बिकॉज दिस नंबर इज़ 45 विच इज़ लेस देन 50, ये नंबर जो है वो 50 इंक्लूड कर रहा है तो ये रेंज में होगा विच इज़ लाइंग इन 35 to 40, यहाँ पे लाई कर रहा है, तो लोअर लिमिट कितना हो गया, L स्टैंड फॉर 35, L इज इक्वल टू 35, हाइट कितनी है क्लास की 5, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट, F मुझे जो फाइंड इट आउट करना है दैट इज़ हाउ मच इज़ 5, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इज इक्वल टू कितना होगा 33, इसकी कितनी है फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 33, नाउ आई एम प्लेसिंग दिस वैल्यू दैट इज इक्वल टू लोअर लिमिट 35, n by 2 is equal to 50, f, this is my f, this is called as na CF, 50 माइनस CF, ये CF ले लिया, फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू 33, ये वाला, दिस CF, दिस F, सो आगे के क्लास को क्लास ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 45 अपॉन 33 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे, सो 35 50 में से जाएंगे दैट इज इक्वल टू 5, 5 5 जा 25 डिवाइडेड बाय 33 कर दूँ, विल डू द सिंप्लीफिकेशन, आई एम टू गेट द वैल्यू इज 0.76, 0.76 विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट, 0.76, अगर मैं ऐड करता हूँ देन मीडियन एज विल बी 35.76, इज़ अ वेरी इजी सम्स, जस्ट यू हैव टू फाइंड इट आउट कि कहाँ पे कौन सी चीज़ आपको प्लेस करनी है, दिस कॉल्ड एन फ्रीक्वेंसी CF, n पे से ये ढूंढना है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, देन लोअर लिमिट इज इक्वल टू 35, हाइट इज 5, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू frequency which has been given is a 33, sorry I had written something irrelevant, 33, so frequency 5 is there na, frequency is a 5, so frequency of the median class is equal to कितना है 33, ये 33 आ गया था, so I have to write down this frequency, ये बिलो के लिए एप्लीकेबल होगा, that remaining for a upper class we'll see in a next sum, 35.76 years आ गया मीडियन में, नेक्स्ट दैट इज सम नंबर 4, नाउ सम नंबर 4 आई एम कीपिंग द क्वेश्चन ओवर हियर, इट इज 118, 126, 127, सो इट इज नॉट ए जॉइंट क्लास, ये जॉइंट में नहीं है, सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू अटैच दिस पर्टिकुलर क्लास एंड आई हैव टू मेक 40 leaves of the plant is measured, correct the nearest millimeter, and data observed is repeated in following table 3, 5, 9, 12, 5, 4 and 2. Find the median of the length.
नाउ यहाँ पे आपको दे दिया है कि आपको शुरुआत कहाँ से करना है हिंट में, बट इन एग्जाम दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू ए हिंट, यू हैव टू रिमेंबर इट कि 126 यहाँ पे होना चाहिए, तो हमें कोई प्रोसेस करनी नहीं है, अदरवाइज वी हैव टू डू द प्रोसेस। आगे के अंदर 0.5 के आगे से लेंगे, यहाँ पे जो जाएगा दैट इज़ ए 0.5 और एक ऐड करेंगे 180.5, सो इट इज़ गोइंग टू गिव यू 117.5 to 126.5 is equal to 3, 126.5 to 135.5 is equal to 5, 136, 135.5, 144.5. I am keeping over here so you are able to understand this along with the sums. 135.5, 144.5 is equal to 9, 144.5 to 153.5 is equal to 12, 153.5, 162.5 is equal to 5, 163 के बदले 162.5 to 171.5 is equal to 4, 171.5 to 180.5 is equal to 2. This frequency is the same which I had written on this particular table. Now I have to find it out a CF, that is called as a cumulative frequency. तो एडिशन करते जाएंगे, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी इज 3, नेक्स्ट विल बी ए 3 plus 5 that is equal to 8, 8 plus 9 17, 17 plus 12 29, 29 plus 5 34, 34 plus 4 38, 38 plus 2 that is equal to 40. Now n by 2 find it out करने के लिए 40 by 2 is equal to 20. So 20 is going to lie, ये नंबर कितना आ गया 17, ये कितना है 29, तो इसके अंदर 17 इंक्लूड है, बट द 20 विल बी इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर पार्ट. So this is called as my main target to get my answer. From this I am going to collect my data. This is my L. So L is equal to 144.5. H class length subtraction कर देंगे, then it will be a 9. Frequency is equal to 12. CF is equal to 17. And now I'll put everything in a formula. L plus n by 2 minus CF upon F multiplied by, that is equal to 144.5 plus 20 minus 17 upon 12 multiplied by 9. So 144.5 plus 17, 18, 19, 23, और इसका कैंसलेशन करेंगे 4, 9 upon 4. So you will get the answer, that is a 146.75 mm. So median length of the leaves is equal to 146.75. Hope from these particular sums you are able to understand the formula pertaining to the median. These are very easy among all, but please remember that जो आपने ज्वाइंट किया है वो पार्ट आपको एग्ज़ाम में नहीं दिया गया होगा, तो आपको जो लेंथ है उसको अटैच करना पड़ेगा बाय पुटिंग 126.5 और समथिंग लाइक दैट, 0.5 के साथ ऐड करेंगे. सेम सम्स वी हैड सीन ऑलरेडी इन आवर नेक्स्ट सेशन, देखा हुआ था हमने ऑलरेडी लास्ट में. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. The sum just I am highlighting on a page in textbook that has been given on a page number 289, 1500 to 2000, 14, 2000 to 2056, 60, 86, 74, 62 and 48. 400 neon lamps are there. Find the median of lamp. Now based on this 14, 56, 60, as it is attached, I have to write down directly. I am going to do the sum of this. आपको ये ध्यान रखना है एडिशन में कोई गड़बड़ नहीं करो. 14 plus 56 is equal to 70, 70 and 60 is equal to 130, 130 and 86 is equal to 280, 216, 216 plus 74 is equal to 290, 290 plus 62 is a
352 plus 48 is equal to 400. What is my value of n? 400. n by 2 करेंगे कितना आएगा? अब 200 है वो कहाँ पे होगा? दैट इज गोइंग टू लाई 130 यहाँ पे पैक हो गया ना, इट विल बी ए 130 इज ओवर हियर, तो ये मेरा मेन हो जाएगा. सो दिस इज माई मेन पार्ट. This is my L, 3000. Frequency F is 86. This is my CF. And class length जो पूरा H जो है that will be a 500. H will be a 500. CF is a preceding class that is equal to 130. Now place the value median L n by 2 minus CF upon F multiplied by H. 3000 plus 200 minus 130 upon multiplied by 500, that is equal to 3000 plus 70 multiplied by 500 divided by 86. If you do the simplification of this, then you will get the value is 3000. इसका जो आंसर है will be a 406.976. ये मैंने डायरेक्ट निकाला है. यू हैव टू डू द सिंप्लीफिकेशन बाय दिस टू पर्टिकुलर थिंग्स, देन यू विल गेट द आंसर इज इक्वल टू दिस. नाउ यहाँ पे 6 है, आगे के नंबर में एक डिजिट ऐड हो जाएगी, देन इट विल बी 3406.98. सो दिस विल बी योर आंसर. Thank you. Next number is 6. Number of the letters which has been given is 1 to 4, 6. CF 6 आ रहा है, 4 से 7 30. 30 plus 6 is equal to 36. 7 to 10 is equal to 40. 36 plus 40 is equal to 76. 7 to 10 is equal to 40. 36 plus 40 is equal to 76. 10 to 13, 16. 76 plus 16 is equal to 92. 13 to 16, that is equal to 4. 92 plus 4 is equal to 96. 16 to 19, that is equal to 4. 96 plus 4 is equal to 100. What is the value of frequency is equal to 100. n by 2 is equal to कितना आ जाएगा? 50. अब ये जो नंबर है ये 36 यहाँ पे स्टॉप हो गया. Next will be a, so it will be going to include in this particular part. This selection is a very important, and based on this you have to write down this is your L, this is your F, this is your CF. class length हो जाएगी that is equal to H is equal to 3. Now place this value. मीडियन क्लास इज 7 and 10. लोअर लिमिट इसकी कंसिडर करेंगे यानी आगे का नंबर, दैट इज इक्वल टू CF. नाउ इसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो रही है CF दैट इज इक्वल टू 36. आगे का नंबर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 40. देन H इज इक्वल टू 3. मीडियन का फॉर्मूला प्लेस कर दीजिए L प्लस n by 2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाय H. प्लेस कर दीजिए वैल्यू को 7 प्लस 50 माइनस 36 अपॉन 40 मल्टीप्लाई बाय 3. 7 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 40, दैट विल बी ए 8.05 विल बी योर आंसर. सो इफ यू विल डू द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस विल गेट द वैल्यू समवेयर अराउंड 1.05. वैल्यू विल बी ए 1.05. So thank you very much for being with me for this particular sums. Now next sum, that is sum number 7, which is also a very easy, but इसी सम के अंदर पैरेलली मुझे पूछा गया है मीडियन नंबर ऑफ द लेटर ऑफ द सरनेम एंड फाइंड द मीन नंबर ऑफ द सरनेम लेटर. इसी सम का यही सेम सम दैट आस्क अबाउट द अनदर थिंग,
दैट इज़ अ मीन ऑल्सो। तो मीन फाइंड आउट करने के लिए मुझे वापस से पुराना फॉर्मूला याद करके मैं जाऊँगा। तो 1 to 4 हैविंग 6, 4 to 7 30, 7 to 10 इज इक्वल 40, 10 to 13 is equal to 16, 13 to 16 is equal to 4, 16 to 19 is equal to 4, total is equal to 100. xi, that is a half of this, 5 divided by 2, that is equal to 2.5, 7 plus 4 is equal to 11 divided by 2, that is 5.5, 8.5, 11.5, 14.5, 17.5 respectively. Here this is my assumed mean a. तो डी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस 11.5. सो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट निकल जाएगा -9, -6, -3, 0, 3, 6. अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना, द डिफरेंस इज रिलेवेंट टू द एच ओनली. एच के जितना ही डिफरेंस है दोनों के नंबर के बीच में. 3 इज अ नेगेटिव एंड दिस यू कैन डू ए डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस ऑल्सो. But still we are able to reduce this particular number. We are going to find it out. ui is equal to di by h. H I had already told you is a 3. So I am dividing this. So 3 3s are 9, -3, -2, -1, 0, 1, 2 and so on. fi ui करेंगे, that is a 6 multiplied by 3, -18, 30 2s are -60, 41s are -40, 0, 4, 8. Sigma of fi ui is equal to, you have to do the addition of these two, that is equal to 12. Subtract it, यहाँ का एडिशन कर दीजिए, you will get the values of -106. x bar is equal to a plus sigma of fi ui upon sigma of fi multiplied by h. Value of assumed mean is equal to 11.5. Now sigma of fi ui कितना आया था, that is 116. Sorry, this point has been written by mistakes by me. This 6, इसको 106 is the value, 106 is there, 106 upon 100, that is n, multiplied by h, that is a height is equal to 3. I'll do the simplification. This value will be a negative. So 11.5 minus 3.18. इसका सिंप्लीफिकेशन करने पे आपको ये मिलेगा -3.18. देन सब्ट्रैक्शन करने पे यू विल गेट द वैल्यू इज 8.32. ये जो पार्ट है, इट इज़ योर टाइम कंज्यूमिंग पार्ट. It will take around 2 minutes or 1 minute, 1 to 2 minutes to solve this particular part. So please do it by your own. That multiplication and that I had not explained over here, because you have to use your own method which you had already learned in a standard 8. या तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, that 6 3s are 18, 3 1s are 3, 100 है, नीचे पॉइंट डाल देंगे, दैट इज 3.18 आ गया. तो अप्लाई सम सिंपल लॉजिक्स एंड यू आर एबल टू गेट दैट. जब तक नीचे 100 है, डू नॉट कैंसल दैट, अदरवाइज इट विल मेक ए कॉम्प्लिकेटेड. इट इज़ अ वेरी सिंपल. यू विल गेट दिस वैल्यू, सब्ट्रैक्ट कर दो एंड गेट योर आंसर. थैंक यू. नेक्स्ट, उसी का ही मोड फाइंड इट आउट करना है, सेम. This is the same to the sum number 1. Now 1 to 4 is 6, 4 to 7 is equal to 30, 7 to 10 is equal to 40, 10 to 13 is equal to 16, 13 to 16 is equal to 4, 16 to 19 is equal to 4, n is equal to, sum is equal to n, 100 which has been given. Now 100 का हाफ करेंगे, कितना हो जाएगा, 50. So the maximum कितना है, highest among all is equal to 40, maximum 40. तो हम इसको कंसिडर करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे F1, उसके आगे को F0 और पीछे वाले नंबर को F2. आगे के नंबर को L कंसिडर किया जाएगा. नाउ मॉडल क्लास इज 7 to 10, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H.
एच मैंने आपको ऑलरेडी इन्वेंट कर लिए थे, 3 था. सो विल पुट 3 ओवर हियर. लोअर लिमिट इज 7, 40 minus 30, 2 multiplied by 40 minus 30 minus 16, 7 plus these are 10. नीचे सिंप्लीफाई करने पे आई एम गोइंग टू गेट द आंसर इज 34. दिस मल्टीप्लाई बाय 3, सो मोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 प्लस 10 3 जा 30 डिवाइडेड बाय 34, दैट इज 0.88. 0.88 विल बी द आंसर ऑफ दिस. इट इज गोइंग ऑन, कंटिन्यूएशन में है, तो 7.88 विल बी द आंसर. आफ्टर दैट प्लीज राइट इट डाउन. मीडियन 8.05, मीन 8.32, मोड 7.88. So this sums is a really good and a brainstorming exercise is there. So I am requesting you to please solve this particular part. Now we are going to see some number is 7. Some number 7 distribution is given 30 students का है. 30 स्टूडेंट्स के अंदर हमें फाइंड इट आउट करना है. दैट इज़ ए मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट. तो मीडियन फाइंड इट आउट करने के लिए वंस अगेन आई हैव टू प्रिपेयर ए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. सो 40 to 45 इज इक्वल टू 2, 45 to 53 5, 8. नाउ 8, दिस 8 2, 3 and 2 is equal to 5, 5 and 8 is equal to, then 13 plus 6 is equal to 19, 19 plus 6 is equal to 25, 28, 28 and 2 is 30, n by 2 is equal to क्या है 30 by 2. आंसर कितना आएगा 15. अब ये तो कम है 15 से, ये ज़्यादा है, तो इसके बीच में लाई करेगा ना, तो दिस विल बी ए 19. सो 19 वाले क्लास को कंसिडर करेंगे. तो दिस माई L, this CF, this is equal to F, H is equal to 5. Now median class is equal to 55 to 60. L is equal to 55, F is equal to 6, CF is equal to 13, H is equal to 5. I had collected all the data. I had informed you how to collect that particular things. Now median is equal to L plus n by 2 minus CF upon F multiplied by H. So this is going to become 55 plus 15 minus 13 upon 6 multiplied by 5. So 55 plus 2 by 6 multiplied by 5. 5 2 is 10 by 6, that is equal to 0.67. 666 जाएगा, you have to consider as ना 67. So 55.67 will be the answer of this. Thank you. Here we are finishing our exercise number 14.3. Now we will start for a 14.4. Usually in school they are usually avoiding कि ग्राफ नहीं पूछा जाता है, but if you will see the supplementary which has been given to you, कि उसके अंदर कई चीज़ें ऐसी होती है कि ग्राफ का पेज दिया जाता है. There may be chances they may ask sum from this. First I will show you the sum of 14.4. Following distribution has been daily income of 50 workers of a factory. 100 से 120 12 है, 120 to 140 is equal to 14, 140 to 160 8, 6 और 10. Convert the distribution above to a कौन सी टाइप है, लेस देन टाइप CF डिस्ट्रीब्यूशन, एंड ड्रॉ इस OG मीन्स ग्राफ बनाना है हमें 2D में. नाउ लेस देन 120. अब लेस देन में मुझे बनाना है, तो पहली फ्रीक्वेंसी क्या था 12. लेस देन 140, सो आई हैव टू ऐड दैट नंबर विद अ फ्रीक्वेंसी, दैट इज 12 plus 14 is equal to 26. लेस देन 160 एडिशन होता जाएगा, 26 plus 8 34. देन लेस देन 180, 34 plus 6 is equal to 40. 200, 40 plus 10 is equal to 50. Taking upper limit of the class interval on x-axis,
सो मैंने यहाँ पे 120, 140, 160, 180 एंड 200 प्लॉट कर दिया है। ये ग्राफ मैंने जस्ट रफ में आपको बनाया। यू हैव टू यूज़ द ग्राफ पेपर फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। नाउ क्लास फ्रीक्वेंसी जो मुझे है, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, 10 से लेके 50 के बीच में है। सो आई एम टेकिंग 1 पॉइंट एक्स्ट्रा, 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। एज यू लर्न दैट यू हैव टू ड्रॉ ए क्लिंक वो हियर, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स को ओमिट कर रहा हूँ। सो आई विल ड्रॉ ए क्लिंक ओवर हियर। देन 120 का कितना था, दैट इज इक्वल टू 12। सो आई एम प्लॉटिंग 12 ओवर हियर। देन 140 इक्वल 26, 140 20 और 30 के बीच में 26। देन 160 इज अ 34, 180 दैट इज इक्वल टू 40 एग्जैक्ट है। देन 200 इज इक्वल टू 50। नाउ join this particular graph in like this. This is your graph. Here you have to write down this is the value of CF and this coordinate upper class limit. क्या बोलेंगे? Upper class limit. Thank you. Now next. अब इससे ऑपोजिट में जाएंगे। वी हैव टू प्रिपेयर इट एंड बिफोर दैट विल सी द सम्स। ड्यूरिंग ए मेडिकल चेकअप ऑफ ए 35 of a class, the weight were recorded as follow: less than 38 is 0, less than 40 is 3, 42 is a 5, less than 44 is 9, less than 46 is a 14, less than 48 is equal to 28, less than 50 is 32, less than 52 35। ड्रॉ ए लेस देन टाइप का बताया फॉर गिवन डेटा। नाउ हेंस हियर ऑब्टेन द मीडियन वेट फ्रॉम द ग्राफ एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय यूजिंग अ फॉर्मूला ऑल्सो। यानी वापस से हमें फॉर्मूला लगा के भी उसको प्रूव करना है। द आंसर विच आई एम गेटिंग इज अ करेक्ट। नाउ दिस ए वेरी इंटरेस्टिंग सम्स। नाउ लेट अस सी लेस देन टाइप। देन लेस देन 38 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, लेस देन 43 5 9 14 28 32 एंड 35 यानी इज इक्वल टू 35। सो n बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 17.5। जस्ट यहाँ तक का फिगर रख के और यहाँ पे से मैं ग्राफ प्लॉट कर दूंगा पहले। तो 17.5 जो है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 0 से 5 के प्लॉट कर रहा हूँ मैं। I plot up to a 35 on CF on a y-axis and upper class limit I drawn on a x-axis. Here I had taken as a gap is a 2 Here I had drawn one clink because I am not plotting that particular part, omitting the number between 0 to 38. So 38, 40, 42, 46, 48 and my last limit is a 52. So I had plot up to a 52. Now I plot this. ये 0 है तो मैंने 0 पे लगाया है। 40 है then value is a 3. So 3 पे लगा दूंगा। 42 is equal to 5 एग्जैक्ट है। then 9 then 14 एक नीचे है। then 28 is over here. then 32 above 30 then 35 is over here. Now मुझे n by 2 की वैल्यू क्या मिली है 17.5. Draw a parallel line segment over here. Before that you have to join this. ये जो जहाँ पे इंटरसेक्शन करता है वहाँ से पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस एक लाइन सेगमेंट में ड्रॉ कर दूंगा विच इज़ इंटरसेक्टिंग एट 46.5। n/2 के पैरेलल ड्रॉ करने के बाद जो मेरे लाइन को जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है उसके पैरेलल ड्रॉ करूँगा। जो वैल्यू मुझे मिलेगी 46.5 इज़ माय मीडियन बाय ग्राफ मेथड। सो मीडियन विच इज़ लाइंग ऑन एक्स एक्सिस का वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
46.5. You will get exact when you will plot these particular things on that ग्राफ पेपर. नाउ कैलकुलेस वे से अगर जाते हैं तो 17.5 का अगर मैं कंसिडर करता हूँ, देन द वैल्यू विल बी ए 28. क्लास इंटरवल इज 46 to 48. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 14. प्रीसीडिंग क्लास का भी 14 आएगा. h इज इक्वल टू 2. मीडियन इज इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस cf अपॉन f मल्टीप्लाई बाय h, दैट इज इक्वल टू 14. 6 प्लस 17.5 माइनस 14 अपॉन 14 मल्टीप्लाई बाय 2. 14 15 3.5. 2 का कटिंग कर दिया है. 7 5 35. 0.5 will be the value of this part if you do the calculation. So 46 plus 0.5, answer will be a 46.5 median, hence verified by graph method also. Now sum number 3 here. ये एक लेस देन टाइप के अभी तक कर रहे थे. ये है मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स ऑरिजिन. इसमें खाली ग्राफ प्लॉट करना है. नाउ प्रोडक्शन यील्ड मोर देन 50. तो टोटल जो मैक्सिमम है वो हम यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे. दैट विल बी 100. सी दिस हैज बीन गिवन फॉर 100 फार्म्स ऑफ ए विलेज. यहाँ पे मैक्सिमम आ जाएगा and it is going to be subtracted consecutively. Now let us see over here. First is equal to 100 more than 55. तो 100 माइनस जो 2 था वो करेंगे. that will be equal to 98 more than 60. 98 minus 8, that is equal to 90. 90 minus 12 is equal to 78. 78 minus 24 is equal to 54. 54 minus 38 is equal to 16. मोर देन 75 तक का रिजल्ट मुझे दिया गया है. नाउ टेकिंग ए लोअर लिमिट ऑन एक्स एक्सिस एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस. नाउ आगे जो ग्राफ प्लॉट किए थे दैट विल बी गोइंग दिस डायरेक्शन. दिस आर लेस देन टाइप ना. दिस ऑल्सो ए less than type, but in more than type it is going to be a downward. So I am drawing a cumulative frequency from 0 10 20 30 40 50 60 80 90 and 100. Here I had drawn a click because I am starting from 50. Please draw this. There may be chances in school exams sometimes teachers is not allowing to do silly mistakes and they will cut your 1 mark, or sometimes they are giving a 0 also. So 50, 55, 60, 65, 70 and 75 on x-axis. That is a lower class limit. Here 50 की वैल्यू कितनी थी? 100. So I am plotting over 100. Then 98. It will be a 98. Then 90 exactly. Then 78. Then 54. Then सीधा जाएगा 60 पे 16. आफ्टर दैट यू हैव टू जस्ट ड्रॉ दिस. प्लीज डू नॉट टच टू ए वाई एक्सिस और ए एक्स एक्सिस. जस्ट आप उसको सिंपली पेंसिल से एक दूसरे के साथ अटैच कर देना है. ओके, सो दिस रिलेवेंट टू द ग्राफ. दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट सम्स. आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू फॉलो दिस 14.4 ट्वाइस. ये एक बार अगर आप कर लेंगे तो आपको ग्राफ के रिलेवेंट कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा. एट द सेम टाइम आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज राइट द समरी एंड रैंडम सम, 2 sums from 14.1 14.2. ये दो में से आप रेंडमली 3 सम्स करोगे. इसमें से 14.3 एंड 14.4 2 times.
This is your homework. If you have any doubt, I already told you, please contact me 9638 229462. Here we are finishing these chapters. If you had any doubt, please let me know, so I will explain you once again on my next lectures. Thank you very much for being with us. Thank you.